Okay, children, welcome. Hope all of you are good and enjoying your extended vacation. First of all, congratulations for clearing your 10th standard and entering in 11th, and that too choosing commerce stream. Okay, let me assure you that you have taken best decision of your life, and welcome to the Vidya Bharati family. Okay, let me give you introduction about myself. I am Deepak Shinde. I'll teach you accountancy along with Monica teacher, Lavish sir, Pankaj sir. I'll give the introduction of accountancy today. Let's see what exactly account is. I strongly believe that before you start your studies, you should know what subject is all about. Right? You should know what is exactly the subject. Now, for accountancy, what exactly accountancy is? Before going ahead, all of you know that in past, if you'll go to history, right? Human being has its separate and special existence in universe, right? All of you know nothing, there is nothing new in that. Barter system was prevailing in economy due to the absence of money as a medium of exchange. Now barter system, all of you know what exactly barter system is. In barter system, we exchange goods or services in exchange of goods or services. That is, there is no medium of money and the exchange is done directly. Now the exchange is done indirectly with the help of money, but earlier the exchange was done directly. So barter system is a direct method of exchange. Remember this thing. In this system, product was exchanged against product or product was exchanged against services. Due to limitation of barter system, we need emerge for a medium of exchange. But there were many limitations of barter system. Limitations मतलब barter system में बहुत सारी रुकावटें थी. And because of that, there was a need, something new must be discovered. And that's why there was discovery of a medium of exchange that we all of us know, that is money. So slowly as we went ahead, money was used as a medium of exchange. Now what was the problem in barter system? See, you can see in this picture. Just give a view and see what is shown in this picture. Try to see it. See, here a person is giving this whole cow for buying some small things, right? Now if this person don't need too many things, he needs suppose 1 cup for example, how can he give full cow in exchange of this one small cup? So what he has to do is he has to cut this cow or any other animal, which is not possible, and that was the biggest limitation. Next limitation was coincidence of want. So what do you mean by coincidence of want? एक के पास वो जो है वो दूसरे को चाहिए और दूसरे के पास जो है वो पहले को चाहिए, और इन दोनों की जरूरतें एग्जैक्टली वही होना जो एक दूसरे के पास होना, ये बहुत मुश्किल था. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. And if it was like that, it was very difficult to find such persons, because at that time there was no phone, no newspaper, no television, no OLX, no Flipkart, nothing. So how people were coming in contact to each other? That's why there were limitations of barter system. Okay, now our topic is not a barter system. Our topic is of accountancy, but you should know what is barter system. So what happened? There was invention of money, and when there is invention of money, there is a need to keep records of all the transactions which we do in the form of money. Now what is accounting? See the definition. I will show to you very clearly. Accounting is an art. देखो समझना थोड़ा. आर्ट यानी स्किल यानी कला हर किसी के पास नहीं होती. पेंटिंग हर कोई नहीं कर सकता, सिंगिंग हर कोई नहीं कर सकता, डांसिंग हर कोई नहीं कर सकता. वैसे ही अकाउंटिंग हर कोई नहीं कर सकता. अकाउंटिंग इज आर्ट. बट आर्ट ऑफ व्हाट? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. सी, in accounts you will find different expenses. For example, expense of raw material. If you want to produce something, you need raw material, barabar,
अच्छा, along with raw material you may have to do some advertisement, correct? Now see, परचेसिंग रॉ मटेरियल इज एक्सपेंस, खर्चा हुआ ना बिजनेस के लिए। अब आप अपने आप को एक बिजनेसमैन मान के चलोगे, पूरे साल भर आप अपने आप को क्या मानोगे? यू आर अ बिजनेसमैन, एंड थिंक फ्रॉम बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू, यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। नाउ इफ यू आर ए बिजनेसमैन यू नीड रॉ मटेरियल। अच्छा, from raw material you will produce some goods, that means you are going to convert that raw material into finished goods. Now you want to sell that finished goods. Suppose you are a businessman of producing cloth. For cloth cotton is the raw material, बराबर ना? तो कॉटन खरीदना पड़ेगा, खर्चा हुआ ना आपका। अच्छा चलो, कॉटन से आपने क्लोथ बना दिया, फिर उसको बेचना भी पड़ेगा, तो बेचोगे तो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा तो करना पड़ेगा ना सेल्स के लिए, तो एडवर्टाइजमेंट भी आपका खर्चा हो गया। लेकिन दोनों खर्चों में फर्क है। दिस एक्सपेंस इज ऑफ प्रोडक्शन एंड दिस एक्सपेंस इज ऑफ सेल्स। दैट इज क्लासिफाइंग which are the expense of production, which are the expense of sales, and there are n number of expenses. As you will go ahead, you will come to know, but right now understand that in accounts we not only record these expenses or income, but we also classify them. Along with classifying we also summarize. Now what do you mean by summarizing? Just a minute, let me clear it. Okay, now what do you mean by summarizing? Summarizing means what? See, if you are going in a stationery, you may buy some pen. Okay, pen of suppose 10 rupees, eraser of 5 rupees. Okay, then some pencil of 15 rupees. Now in accounts, we don't write in detail. For example, we purchase pen of 10 rupees, eraser of 5 and pencil of some 15 rupees. No, we are not going to do it like this. We are going to summarize this whole expense in one account, that is stationery. And stationery expense we are going to write directly 30 rupees. Now what we did? We did summarizing, correct? There is no use at the end of the year that how many pen we purchase and how many eraser we purchase. We just need to know how much expense we did in stationery and total expense we got it. That's it. So that is, we can call it as summarizing. Hope this pointer are clearing to all of you. Okay, in a significant manner and in terms of money, again this is important. In accounts we write only things which we can explain in terms of money. For example, we are paying salary of 15,000. Okay, salary you can calculate, you will write it in terms of money. हाँ, but we have very honest employees. अच्छा, ईमानदार एम्प्लॉय है तो ईमानदार है तो है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको हम बुक्स में कहाँ लिखेंगे? ईमानदारी आप कैसे लिखोगे? You cannot explain in terms of money. So in accounts you will only explain those things which can be explained in terms of money. ठीक है? Means those transactions which can be explained in terms of money. Okay. And events which are in part of at least of financial character, means in terms of money, and interpreting the result. Now what do you mean by interpreting the result? You have to interpret whether the business is in profit or loss. Result means what? Profit or loss is the result of business. आप लोग का रिजल्ट आ गया, एसएससी का मार्कशीट आ गई, आपका रिजल्ट आ गया। एक बिजनेसमैन के लिए रिजल्ट क्या है? वो साल के एंड में प्रॉफिट कैलकुलेट करता है कि प्रॉफिट में है या लॉस में है, ये उसका रिजल्ट है। फिर रिजल्ट चेक करने के बाद उसको इंटरप्रेट भी करना है कि अगर प्रॉफिट हुआ तो पिछले साल से अच्छा हुआ या कम हुआ, लॉस हुआ तो ज्यादा हुआ कम हुआ, क्यों हुआ, ये इंटरप्रेट करना। All these things are included in accounting. Now see how much interesting this subject is going to be. जब तक आप कॉमर्स में हो ना, अकाउंट्स आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं। एंड लर्न दिस डेफिनेशन। देखो अकाउंट्स में ज्यादा थियरी आती नहीं, 15, 10, 20%। ठीक है, कुछ फिक्स नहीं कितनी आएगी थियरी, लेकिन कम आती, सम्स ज्यादा होते, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको लर्न करने ही है। This definition was given by American Institute of Certified Public Accounts. Full form याद रखना AICPA.
लेट्स मूव अहेड नाउ. होप अकाउंटिंग इज क्लियर. तो इन शॉर्ट में व्हाट इज अकाउंटिंग, देखो मैं हिंदी में बोलता हूँ. देयर आर सम स्टूडेंट्स हु हैव कम फ्रॉम हिंदी मीडियम आल्सो इन इंग्लिश मीडियम. उनके लिए एक बार हिंदी में बता दूं सिंपल. अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक आर्ट है, एक कला है. किस चीज की? जिसमें चीजों का हम रिकॉर्ड करते हैं. मेरी हिंदी बहुत ज्यादा हाई लेवल की नहीं है बट आपको समझ में आ जाएगी. जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है. क्लासिफाई करते हैं मतलब अलग अलग करते हैं. कुछ खर्चे, जैसे मैंने कहा ना, कुछ खर्चे प्रोडक्शन के, कुछ सेल्स के, क्लासिफाई करना. समराइज करते हैं. समराइज करना मतलब शॉर्ट में, स्मॉल में, ठीक है, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एफिशिएंट मैनर, सही तरीके से, बेस्ट तरीके से, ठीक है. लेकिन कौन सी चीज है? विच यू कैन एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ मनी. सिर्फ वही ट्रांजेक्शन जो आप पैसों में एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट. और उससे हमें बिजनेस के रिजल्ट का पता चलता है जिसको हम इंटरप्रेट करते हैं. अरे इंटरप्रेट करना मतलब एनालाइज करना, पता करना ऐसा क्यों हुआ, और आगे आने वाली पीरियड के लिए अंदाजा लगाना कि अभी इतना प्रॉफिट है तो नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट क्वार्टर में या 6 महीने के बाद कितना प्रॉफिट हो सकता है. और ये जो पूरा प्रोसेस है ये करना, इसको हम अकाउंटिंग कहते हैं. तो पता चल रहा है अकाउंटिंग को क्यों आर्ट कहा गया, क्योंकि नॉर्मल इंसान ये नहीं कर सकता, राइट. दिस वाज समथिंग अबाउट अकाउंटिंग. दिस ईयर विच आर द थिंग्स विच यू आर गोइंग टू सी इन अकाउंट्स. देखो ये 2 पार्ट है अकाउंटिंग्स में, पार्ट 1 पार्ट 2. पार्ट 1 कुछ हम टर्म्स देखेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में. अकाउंटिंग क्या है उसका डेफिनेशन हमने डिस्कस कर लिया है. कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ खास चीजें हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट में, ठीक है, ये चैप्टर में. और कुछ टर्मिनोलॉजी से हम सारी चीजें फिलहाल कंटिन्यू में नहीं करेंगे, जितनी जरूरत है उतना हम पहले कंप्लीट कर देंगे, ठीक है. नेक्स्ट इज ड्यूअल इफेक्ट. ड्यूअल इफेक्ट क्या है चैप्टर आएगा तभी आपको पता चलेगा. अभी इतना बता दूं कि अकाउंट्स में हर चीज के 2 इफेक्ट हो गए, हर ट्रांजेक्शन के कम से कम 2 इफेक्ट हो गए. उसको हम बोलते हैं ड्यूअल इफेक्ट. क्या है चैप्टर पढ़ेंगे तब पता चलेगा. जर्नल. जर्नल क्या है मैं भी आपको शॉर्ट में नहीं बता सकता, क्योंकि जब आपको ये समझ में आएगा ना तभी आपको ये समझ में आएगा. अकाउंट्स में कुछ इक्वेशन है, जस्ट लाइक सम मैथमेटिक्स, कुछ इक्वेशन है वो हम देखेंगे क्या है वो. सब्सिडरी बुक, अलग अलग खर्चों के लिए हम अलग अलग बुक्स बनाते. जैसे सेल्स के लिए एक अलग बुक हमने बना दी, परचेस के लिए अलग बुक बना दी, कैश के ट्रांजेक्शन के लिए एक अलग बुक बना दी. उनको हम कहते हैं सब्सिडरी बुक्स. तो चैप्टर नंबर 5 वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज सब्सिडरी बुक्स. कैश बुक उसी का एक पार्ट है. सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड हो गए, क्या हो गए हम बाद में देखेंगे. जर्नल प्रॉपर, इट इज जस्ट लाइक जर्नल, थोड़ा सा फर्क है. क्या है? जर्नल पता चलेगा तो जर्नल प्रॉपर पता चलेगा. लेजर पोस्टिंग, हर ट्रांजेक्शन का एक अलग अकाउंट हम बनाते हैं, उसको हम लेजर कहते हैं. उस अकाउंट को जहां हम मेंटेन करते हैं वी कॉल इट एज लेजर. तो उसमें एंट्री कैसे करनी वो हम देखेंगे. और लास्ट में ट्रायल बैलेंस. सभी अकाउंट्स का जो बैलेंस है, जो समरी है, वो हम लिखते हैं ट्रायल बैलेंस में, राइट. ठीक है, अभी आपको नहीं पता चलेगा ये सब चैप्टर्स क्या है, क्योंकि अभी आपको एबीसी भी नहीं पता, लेकिन स्लोली हम आगे जाएंगे, यू विल कम टू नो. We'll go ahead now. Let's see some of the characteristics of accounting. I'll explain it in short because we are not asking you in this exam about these characteristics. So I'll explain you in short. So as I told you, which are the important topics that we are going to do first. First characteristics is financial characteristics. See, only those transactions which can be measured in money are recorded in accounts, right? So that is financial characteristics. Money as a medium of exchange. We have discussed that in barter system, money was not used. Things or products or services were exchanged in place of products or services. That time there was no money. But here, in accounting, we are going to do transaction in which money is as a medium of exchange. Classification and analysis of transaction. Once we do the entries in accounts, account help us to do classification. Again, as I told you, purchase expense and sales expense are different, right? Interpretation of transaction. We have to interpret the transaction. हमें पता होना चाहिए कि ये transaction हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका आगे क्या consequences होना चाहिए. We can interpret it. How we can do it? As we'll move ahead, we'll come to know. Quantitative information. In accounts, we can write only those transactions which we can count. For example, Rahul is our employee and he is very honest. So we are not going to write that transaction. We cannot count it. Honesty हम गिन नहीं सकते.
आप जब स्कूल में आते हो 12:30 बजे आपको बहुत भूख लगती है, क्या आप भूख गिन सकते हो? मुझे 10 भूख लगी है, मुझे 5 भूख लगी, नहीं, तो वो आप लिख नहीं सकते ना, सिंपल। हाँ, आपने 10 यूनिट खरीदे, वो आपको पता है, 10 यूनिट कितने के पड़े वो आपको पता है, वो चीज आप लिख सकते हो, उसको बोलते हैं हम क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन दो तरह की होती है, एक होती है क्वांटिटेटिव, एक होती है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब जो आप फील कर सकते हो, जैसे ब्यूटी है, ब्यूटी आप फील कर सकते हो, उसको आप गिन नहीं सकते। भूख, खुशी, या फील कर सकते हो, तो वो सब क्वालिटेटिव में आता है। उन चीजों को जिनको आप गिन सकते हो वो क्वांटिटेटिव में आता है। एंड इन अकाउंट्स we are going to take decisions which are economic. Now economic decisions means which are related to money. Because of accounts, we are facilitated to take some important decision for next particular period. और उन डिसीजन को मदद कौन करता है? अकाउंट्स करता है, लेकिन वो डिसीजन कैसे होंगे? इकोनॉमिक होंगे। एंड फ्रॉम अकाउंट्स वी कैन गेट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। 10 साल, 15 साल, 25 साल अगर आपके पास अकाउंट्स की बुक मेंटेन है तो आपको कहीं की भी पुरानी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। So this was something about accounting characteristics. I'm not going to repeat it now. You can of course revise the video and see it again. There is no problem in that. This is the accounting procedure. Now what is done here? ये accounting procedure में होता क्या है? हम शुरुआत किससे करते हैं? हम शुरुआत रिकॉर्डिंग करते हैं। क्या रिकॉर्ड करते हैं? ट्रांजैक्शंस। ठीक है। हाउ? बाय क्लासिफाइंग देम। उसको हम प्रॉपर जगह पे हम उसको क्लासिफाई करते हैं। कुछ इनकम होती, कुछ इनकम बिजनेस में से होती है, कुछ अदर सोर्सेज में से भी हो सकती है। जैसे हमारा बिजनेस है पेन बेचना, तो पेन बेच के हमें इनकम होती है, हम लिख सकते हैं। लेकिन हो सकता है फर्म को कहीं से कोई कमीशन मिला हो, तो वो भी एक इनकम है, तो कमीशन की इनकम हो गई, सेल से इनकम हो गई। हो सकता है फर्म ने अपनी कोई जगह रेंट पे दी हो, तो रेंट से भी इनकम हो सकती है। तो उस इनकम को हमें क्या करना है? क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई करने के बाद एनालाइज करना है, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, और हम एक प्रॉपर कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि इस वजह से ये सारी चीजें हुई। फिर हम इंटरप्रेट करते हैं आगे के बारे में, कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसके सॉल्यूशन क्या है, ये हम इंटरप्रिटेशन करते हैं और एक रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट कौन बनाता है? अकाउंटेंट बनाएगा, जो खुद अगर मालिक है तो उसके खुद के काम में आएगा। इफ इज अकाउंटेंट समवेयर, he will transfer it to the owner of the business. Okay, so this is process of accounting. Why we prepare accounts? That is objectives of account. Why we prepare account? फर्स्ट थिंग, एक परमानेंट रिकॉर्ड हो जाता है हमारे पास लाइफ टाइम के लिए, करेक्ट। दूसरा, टू नो द इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन का बिजनेस पे क्या असर हुआ है, अच्छा असर हुआ, बुरा असर हुआ, जो भी है वो। टू नो द इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स, कौन सी चीजें जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करती, मार्केट में फैशन है, एडवर्टाइजमेंट है, क्या वो इफेक्ट कर रही है हमारे बिजनेस को, कंपटीशन है। हम अगर अकाउंट्स देखेंगे ना तो हमें आइडिया आ जाएगी। ठीक है। हमारे ऊपर टैक्स की लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब बर्डन, कितना टैक्स हमें गवर्नमेंट को अभी चुकाना बाकी है या कितना चुकाना है, या पास्ट में कितना दे दिया, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें अकाउंट से मिल सकती है। टू नो पेबल्स, पेबल का मतलब है कितना देना बाकी। देखो बिजनेस है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर डन ऑन क्रेडिट, हमें उधार देना भी पड़ता है, हमें उधार मिलता भी है। तो अगर हमें उधार मिलता है तो पेबल हो गया, चुकाना है। कितना चुकाना है कैसे पता चलेगा? इफ यू विल सी द अकाउंट्स यू विल कम टू नो हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ पेबल। मेजर प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस कितना प्रॉफिट कर सकता है, ये हमें यहाँ से पता चल सकता है। इकोनॉमिक स्टेटस मतलब फाइनेंशियल कंडीशन, बिजनेस कंटिन्यूसली सालों से प्रॉफिट कर रहा है, मीन्स व्हाट, आवर इकोनॉमिक स्टेटस इज गुड। सालों से लॉस कर रहा है, इकोनॉमिक स्टेटस इज पुअर। दैट वी कैन कंक्लूड बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग। एंड टू फाइंड आउट एरर्स एंड फ्रॉड्स, अगर हमें अकाउंटिंग में एंट्री करने में कहीं पे कोई गलती हो गई, तो अकाउंट्स के हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। अगर एक जगह पे गलती करेंगे तो दूसरी जगह पे हम पकड़े जाएंगे कि हाँ ये आपने गलती की है। अगर आप मालिक हो, आपने हिसाब किताब अपने एम्प्लॉय को दिया है, उसने कुछ फ्रॉड भी किया होगा ना, तो भी आपको अकाउंट से पता चल जाएगा कि कुछ तो दाल में काला है, राइट। सो दैट वी कैन डू बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग। These are the objectives of accounts, right? See, all these things are explained in detail in textbook. If you want to read, you can read it. आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, पार्ट 1 एटलीस्ट, नहीं है तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। जिस किसी को पीडीएफ चाहिए वो मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे रिक्वेस्ट करे कि प्लीज सेंड मी पीडीएफ, आई विल इमीडिएटली सेंड इट टू यू, राइट। आई कैन नॉट सेंड इन ग्रुप, लेकिन मैं
ट्राई करूंगा ग्रुप पे भी भेज दो, लेकिन हो सकता है सबके पास हो, तो व्हाई देयर इज नीड, अगर आपको चाहिए पर्सनली मुझे हाई लिख दो, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। चलो, दिस वाज समथिंग अबाउट व्हाट वी से, जस्ट अ मिनट। ओके स्टूडेंट, एक शॉर्ट रिवाइज, आज हमने क्या क्या किया। हमने इंट्रोडक्शन देखा कि भाई पहले बार्टर सिस्टम वगैरह था, राइट, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था, लेकिन बार्टर सिस्टम के बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, वो हमने डिस्कस किए। उन प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए मनी वाज यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड देयर वाज नीड ऑफ अकाउंटिंग। अगर पैसा है तो हिसाब किताब रखना भी पड़ेगा, और हिसाब किताब रखना एक स्किल है, एक कला है, जिसमें हम अलग अलग इनकम और एक्सपेंसेस, अलग अलग ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं और उसको एक प्रॉपर तरीके से मेंटेन करते हैं, लेकिन वही चीज जिसको हम पैसों में प्रेजेंट कर सके। इस कला को, इस आर्ट को हम कहते हैं अकाउंटिंग। ये कुछ चैप्टर्स है जो आप इस साल देखने वाले हो। हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए एक एक करके, और वीडियो रिवाइज करके देख सकते हैं। हमने कुछ प्रोसेस साइकिल देखा कि अकाउंटिंग में क्या क्या होता है। उसके बाद हमने अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव देखा। तो वीडियो काफी बड़ा है, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग इट शॉर्ट। अभी मैं इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर इज मोर थियोरेटिकल और सेकंड चैप्टर से हमारे छोटे छोटे सम स्टार्ट हो गए, ठीक है। सो फर्स्ट चैप्टर में जो थियोरी है उसमें थोड़ा आपको ध्यान देना है। आज जो हमने थियोरी देखी है वो आपको समझना इंपॉर्टेंट है, लर्न करना इंपॉर्टेंट कम है, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट ज्यादा है। हाँ, अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा अकाउंटिंग टर्म्स पे। वो टर्म्स आपको डेफिनेटली याद रखने हैं कि अकाउंटिंग टर्म्स में क्या है। फॉर एग्जांपल एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, डेटर्स क्या है, क्रेडिटर्स क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, ये सारे टर्म्स आएंगे, वो आपको पता होने जरूरी है। देखो डॉक्टर्स अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं, पता है ना आपको, केस, इंजेक्शन, रिएक्शन, ये सब डॉक्टर यूज करते हैं। एक लॉयर कौन कौन से टर्म्स यूज करता है, सीमेंस, नोटिस, एक्ट, सेक्शन, ये सब एक लॉयर यूज करता है। वैसे ही अकाउंटेंट बहुत से टर्म्स यूज करता है, जो टर्म्स मैंने अभी आपको बोली। वो टर्म्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तभी आप प्रॉपरली सम कर पाओगे, राइट। ओके, तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। चलो, थैंक यू फॉर द डे ऑल ऑफ यू।